I think we were at this classification of polymers. Yes, So sir. we have seen classification on the basis of source, natural, semi-synthetic, synthetic. We have seen classification on the basis of structure. So when I say structure, they can be linear, they can be branched, they can be cross-linked, right? Okay. When I say mode of polymerization, there can be addition polymers, there can be condensation polymers, there can be open ring polymers. Okay. So depending on these various modes, we had classified. Now, one more type of classification on the based, क्या बोलते हैं, based on the forces between the monomers, how are they bonded to each other. On those bases, we are going to see another classification of polymers, okay, and that is based on the molecular force. So they are classified into four types: elastomers, fibers, thermoplastic polymers, thermosetting polymers. डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग इनका प्रॉपर्टीज है, ठीक है. इसमें से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में, इन दोनों में डिफरेंस आता है रेगुलरली बोर्ड में. अभी लेट्स सी कैसा है क्या नहीं है, ठीक है. Now let us see how their molecular forces affect their properties. Now let us look at elastomers. So they are rubber-like structures with elastic properties. They can be stretched to many times its original length. Okay, but it will come back to its original length when external forces release. Depends का, है ना? ऐसे substances को हम लोग elastomers कहते हैं. Okay. Now, if you look at the bond in between them, they are held together by weak intermolecular forces. Okay, there are cross links between chains, but some of the cross links are strong, but most of them are weak. Weak, when I say weak doesn't mean weak मतलब एकदम टूट जाएगा, but weak in the sense it can be stretched, it can be elongated, that way. Okay. Now, these are some of the examples of elastomers: Buna S, Buna N, neoprene, and natural. These are some good examples of elastomers. Hello, in front of us. हाँ बेटा बोलो क्या हुआ. हेलो सर, ये क्या है? बेटा we are studying classification of क्या बोलते हैं, polymers on the basis of their on the basis of the bonds, on the basis of their molecular forces between them. So first type is elastomers. तुमने अभी ज्वाइन किया क्या बेटा? Yes sir. मतलब सर अभी कनेक्ट हुआ, मतलब नेट थोड़ा ये हो गया था. कोई बात ठीक. Okay. So on the basis of elastomers, we have seen on the basis of molecular forces between them. The first step which we were looking at was elastomers beta. Elastomers are rubber-like substances which can be elongated many times to its original length, and when the external forces release, they bounce back to their original length. ऐसा. तो उसी में हम देखे थे, they have weak intermolecular forces, and that's why they can be elongated. Some of the examples of elastomers are in front of you: Buna S, Buna N, neoprene, and natural rubber. Okay, guys? Hello, sir. हाँ बेटा. स्लाइम क्या होता है? स्लाइम. हेलो. हेलो सर. हाँ बेटा बोलो ना. हाँ बोलो बोलो, आ रही है बात. हाँ सर, स्लाइम क्या होता है? को इलास्टोमर में आता है क्या स्लाइम? Slime, it is a synthetic. You can consider it as an elastomer only because इसको भी हम लोग stretch वगैरह कर सकते हैं ऐसा.
हेलो सर। हेलो विजय सर। हाँ हाँ बेटा, बोलो बेटा। सर वो उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ये कैसे मालूम पड़ा? उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये कैसे मालूम पड़ा? ये जितने पॉलीमर्स वगैरह होते हैं बेटा, इनका स्टडी होता है ना बच्चा, इनके स्ट्रक्चर्स का स्टडी होता है, कंपाउंड्स का स्टडी होता है। तो व्हेन यू आर स्टडिंग दीज compounds and you're coming to know about their physical and their chemical properties, at that time we consider all these things ना बच्चे। नहीं सर, मतलब कोई ऐसा रीजन, मेन रीजन? बेटा अभी मेन रीजन स्पेसिफिक मैं तुम्हें कैसे बताऊं? It's like when the scientists are studying the properties using different instruments, using different machines, different techniques, तब उनकी properties के बारे में हम पता करते हैं। different tests वगैरह जब उनके ऊपर करते हैं तब पता चलता है कि भाई ये weak होगा कि strong होगा, ऐसा। ओके सर। ओके बेटा। हाँ सर। The type of polymers, it is fibers, ठीक है? Fiber is very easy, you know what is fiber. Thread like substances fibers, हम लोग कपड़े में जो पहनते हैं that fiber, bags वगैरह बनते हैं that fiber भी अलग अलग types के रहते हैं, ठीक है? So again elongated long रहते हैं, thread like structures, tensile strength अच्छा रहता है, ठीक है? So now when I say tensile strength strong रहता है, they have high सर ये tensile फाइबर कहाँ strength, से मिलता है? that does not mean that if I give you an example of fiber, cotton में से बन जाएगा फाइबर, जूट में से बन जाएगा फाइबर, और पॉलीएक्रिलाइट्राइल के फाइबर्स रहते हैं। तो फाइबर इज नथिंग बट ग्रेन्स में से भी मिलता है ना? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ वही। नहीं, वो जो हम लोग जो खाने की बात कर रहे हो तुम, मैंगो में से जो फाइबर मिलता है, हाँ। the structure is similar, yes, but that is a different thing. It is you can consider it as a yeah, biofiber ऐसा। क्या सर वो सर? तो ग्रीन Consider इसमें it? होता है ना, ग्रीन वेजिटेबल और रोटी में। हाँ बेटा, रोटी में कम रहता है, फ्रूट्स इसमें मैंगो वगैरह में ज्यादा रहता है। हाँ इफ यू सी मैंगो को जब हम खाते हैं, उसका इंटरनल अगर आप देखोगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है मैंगो के अंदर। हाँ बेटा बोलो। सर वो क्या आपने बोला, कंसीडर इट एज कौन सा फाइबर? हाँ, कौन सा फाइबर उसको कंसीडर करने का फिर? बायोलॉजिकल। अच्छा, बायोलॉजिकल। बायोमोलिक्यूल जो ये होता है ना, फिजिकल, ये केमिकल फाइबर है क्या? ये फिजिकल केमिकल। हाँ ओके। हाँ सर। थैंक यू सर। या बेटा। Now look at this. Fibers are strong, have high tensile. Okay, they can bear load. Okay, then but they cannot be elongated like elastomers. Elastomers की तरह elongate नहीं हो सकता। Now बेटा, when I'm saying fiber, आप उसको normal thread से compare मत करो। When we say thread-like structure, it has a structure which is thread-like. Normal thread इतना strong नहीं होता है। But when क्या बोलते हैं, जिससे कपड़ा वगैरह बनता है, that is of high tensile strength. Now this high strength, क्या बोलते हैं, rigidity and all, ये property उसके पास इसलिए है because there are internal hydrogen bonds. Now these hydrogen bonds are giving its high strength to it. ठीक है? Now they are packed closely. They are packed. See, the strength is going to be. Now examples of fibers are nylon 6/6, polyester. ये सुना होगा, पॉलिएस्टर, नायलॉन के कपड़े होते हैं। must be knowing about पॉलिएस्टर दुपट्टा, नायलॉन का दुपट्टा। Now we have a question over here. Which of these diagrams better represents an elastomer of fiber? आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा इलास्टोमर है और कौन सा फाइबर है? बी वाला सर, इलास्टोमर। बी फाइबर, बी इलास्टोमर। ए इलास्टोमर है, बी फाइबर है, ऐसा? नहीं, ए फाइबर, बी इलास्टोमर। ए फाइबर और बी इलास्टोमर। इलास्टोमर, हाँ। Did we say that fibers are thread-like structures? So don't you think B should be the fiber and A should be the elastomer? Yeah, B is fiber. नहीं सर, वो स्पेसिफिक शेप है ना उसका। क्या बोल रहे हो बेटा?
फाइबर का स्पेसिफिक शेप रहता है ना, मतलब वो अरेंजमेंट। हाँ सर, उसमें क्लोज चेन रहता है ना, इसमें चेन नहीं है ना बी वाले में। क्लोज चेन रहता है? किसने बोला क्लोज चेन रहता है? सौरभ। सर इसके पहले दिखाया ना आपने डायग्राम में, उसमें क्लोज चेन बन रहा था ऐसा रिंग जैसा। ये रहा, देखो ना। हाँ कहाँ रिंग है बेटा? सर देखो ना, ये पूरा अरे स्क्वायर बच्चे, रिंग की है ना। that is hydrogen bonding. It's not even a complete bond. Hydrogen bond is only increasing its strength. समझ रहे बेटा? ओ हाँ सर, समझा। समझा बच्चे? बी वाला ही अपना ये फाइबर है। ए क्या है फिर? देखते हैं, चलो। इलास्टोमर। इलास्टोमर और फाइबर दोनों में से एक चूज करना है। So A is your fiber. बराबर बोला था। तुमने बोला था कि नहीं? सर इसमें चेन्स लिखा है ना, देखो। हाँ तो अरे that is what I'm saying. You all were right, right? तो कंफ्यूज क्यों हो गए? The answers were correct for the first. All of you all gave the correct answer. हाँ। See, closely packed and proper arrangement of atoms. Like Balaji said, Balaji ने बोला था उसका definite arrangement है and they are closely packed. Hydrogen bonds भी उसके अंदर दिख रहा है strong वाला. Close in contact. ठीक है? Now B is going to be your elastomer. Weak bonds रहेगा. ठीक है? Cross links है और weakly bond है. And they are not tightly packed. Fiber is closely packed with hydrogen bonds, and elastomer is spacely packed with weak intermolecular forces. Right? तुम लोग चैट में कुछ लिख रहे हो क्या? सर एक डाउट था, पूछूं क्या? हेलो सर। हाँ सर, वो ये जो क्लोज पैकिंग है, सर ये क्लोज मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा पूरा क्लोज मतलब ऐसा पास पास वाला, क्या ऐसा बंद वाला? वाओ, ओके। बंद वाला नहीं बेटा, पास पास वाला. If I am understanding what you are saying, I am trying to explain you. बंद, I am assuming तुम closed chain structures की बात कर रहे हो, right? हाँ सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन होती है मेरे को भी। नहीं, closed chain structure नहीं है बेटा, पास पास वाला है, करीब वाला है. एटम मॉलिक्यूल्स उसके लाइन, उसके जो ये हैं क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स के जो चेन है वो क्लोजली पैक्ड है. क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, इसलिए वो ज्यादा लोड बेयर कर सकता है. Are you understanding बेटा? हाँ सर, अभी समझा सर. हाँ हाँ. हेलो सर. हेलो सर. बोलो बोलो बोलो. सर वो इलास्टोमर में वीक बॉन्ड होता है ना बहुत? इलास्टोमर्स में वीक, फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग. सर जब वो वीक है तो उसको स्ट्रेच किया तो फिर वो टूटेगा कैसे? नहीं कैसे? अरे that is what I was saying ना बच्चे. When I say weak, weak का मतलब ऐसा मत समझ लो कि बहुत वीक है. वो वीक बॉन्ड होने की वजह से it has the elasticity का property. But if you stretch it beyond the point, जिसको फिजिक्स में एक वर्ड है, I forgot this, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह में पढ़ते हैं ना, जब एक पॉइंट आता है ब्रेकिंग पॉइंट, उसके बियॉन्ड इफ यू स्ट्रेच इट, इट विल डेफिनेटली ब्रेक. आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? फाइबर से कंपैरेटिवली कम रहता है ना? एग्जैक्टली. ठीक है, ये पॉइंट ना. ओके, कैन आई गो अहेड बेटा? हाँ सर. यस सर. Okay. Now let us look at thermoplastic polymers and thermosetting polymers. हेलो, क्या हुआ बेटा? ये ग्लू गन वाला प्लास्टिक है. कौन सा वाला? वो ग्लू गन में जो यूज होता है. हाय, करेक्ट, वेरी गुड. इसके लिए मेरे पास एक दूसरा वीडियो भी है, मैं वो भी शेयर करूंगा. ठीक है, उससे पहले let us understand this. What is it? Thermoplastic polymers, they can be heated and softened and cooled on hardened. Simple as that. प्लास्टिक है, हीट दिया, मेल्ट हुआ, सॉलिडिफाई किया, अपना शेप वापस उसने रिगेन कर लिया, ऐसा. तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में मेन डिफरेंस यही है. थर्मो इज रिलेटेड टू हीट,
थर्मोसेटिंग में एक बार हीट किया, डिफॉर्म हो गया, वो फिर से रिफॉर्म नहीं हो सकता। एंड थर्मोप्लास्टिक में हीट किया, डिफॉर्म हुआ, कूल किया, फिर से हार्डन हो गया। इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड सेटिंग प्लास्टिक। सर किसमें डिफरेंस, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? Thermoplastic and thermostatic plastics. You can see it on the screen, बच्चे। हाँ सर नीचे दिख रहा है, वो नीचे थर्मोसेटिंग। हेलो सर। बोलो ना सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, पर मैं तो कुछ बोला ही नहीं अभी। नहीं सर, आप जब बोल रहे थे ना थर्मोप्लास्टिक के बाद थर्मोसेटिंग, उस वक्त मैं कर्सर हिला रहा था इसलिए। ठीक है, ओके ओके। Look at this. Thermoplastic polymers. They are linear and branched. They are linear and branched chains in thermoplastic. सर ये सब याद रखना है क्या? Obviously बेटा, क्या तुमको क्या लग रहा है ऐसे हम लोग हवे में पढ़ा रहे हैं सर? मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना, their properties is more important. ठीक है? So intermolecular forces are strong as compared to elastomers and fibers. So जब भी heat करोगे, the chains, they are easily sliding on each other and they become less rigid and they become soft. Okay, heat किया तो सिर्फ melt होता है, melt in the sense soft, और उसको cool किया तो वो solidify हो जाता है। उसका chemical component है, वो कुछ effect नहीं होता, वो कुछ change नहीं होता। ठीक है, thermoplastics can be recycled, रिसाइकल कर सकते हैं, उनको हीट करके, डिफॉर्म करके, उनको रीशेप करके दूसरे इसमें यूज कर सकते हैं। नाउ थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल्स आर पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, पीवीसी। ये एग्जांपल्स लिख रहे हो ना बेटा आप लोग? हाँ बेटा बोलो। सर ये सबको अगर हम लोग पिघलाएंगे तो फिर वो कूल डाउन कर, अगर मतलब वही गर्म करके ठंडा करेंगे तो ये शेप ले लेंगे। ये वाला जो शेप आपको सामने दिख रहा है वो शेप नहीं लेंगे, बट वो डिजायर्ड मतलब तुम इसको पिघला करके किसी और बॉटल का शेप दे सकते हो और पाइप का शेप दे सकते हो, ऐसा। ठीक है, बट यू कैन रीयूज इट, ऐसा है। इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ हीट, मेन पार्ट इज दैट। ओके यस सर। ये examples guys, I hope you all are writing it down. This is why this is a very easy visible part, because chemical के नाम के साथ साथ तुमको उसका application भी उसके साथ ही दिख रहा है, तो it creates less confusion. I hope so, right? Not right. Okay. Now let us have a look at thermosetting polymers. डिफरेंस यही है, वंस इसका स्ट्रक्चर बन गया, परमानेंट हो जाता है वो स्ट्रक्चर, फिर आप उसको हीट करोगे ना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्ट्रक्चर, उसको रीयूज नहीं कर सकते आप। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, so they become hard and rigid on heating. They have cross-linked or heavily branched polymers. ठीक है, when you heat them they form extensive cross-linking, और बढ़ जाता है। ठीक है, now because of this extensive cross-linking they become more hard and more rigid, ऐसा। when you further heat it you cannot remold it, it permanently deforms। ठीक है, it will decompose and the chains, they are unable to separate because of the strong bond. Instead what happens, their bond breaks and it decomposes and they cannot be recycled because of that. सर ये समझ में नहीं आया। Sir, decomposes, what do you mean by it? Decomposes in the sense it breaks, it breaks down,
is not in its original form anymore. It breaks. Its chemical composition also gets altered because its bonds are breaking because of further heating. ऐसा. तो बेटा सौरभ, हम प्लास्टिक को हीट करते हैं तो उनके अंदर एडिशनल क्रॉस लिंकिंग, एडिशनल बॉन्ड्स हो जाते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. ठीक है सर, मतलब नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं हीटिंग पर, क्रॉस लिंक्स हो जाते हैं इंटरनली. हाँ, यू कैन से दैट नया बॉन्ड हो रहा है. ठीक है, और इसको हीट करोगे तो क्या होता है, वो जो बॉन्ड बना हुआ है वो एक एक्सटेंट तक हीट को रेजिस्ट कर सकता है. उसके बाद इतना हीट होता है कि दैट बॉन्ड ब्रेक्स एंड इट परमानेंटली डिफॉर्म्स. ओके, अभी फॉर एग्जांपल स्विच बोर्ड है घर में. ठीक है, वो स्विच बोर्ड में अगर आग लग जाती है तो वो पूरा ब्लैक आउट हो जाता है, वो पूरा बेल्ट होके पूरा ब्लैक हो जाता है, उसको रीयूज नहीं कर सकते. राइट? हाँ हाँ, वैसा. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इज योर बेकलाइट. रिमेंबर लास्ट क्लास में बेकलाइट के बारे में बात की थी हमने. मेलामाइन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. Look at this extensive cross linking in your bakelite का structure. सर वो क्या था, मेलामाइन? मेला वाला दिखा. मेलामाइन. कौन मेला? मेलामाइन बेटा. मेलामाइन. सर दोनों का मतलब एक ही है ना, मेलामाइन. अरे क्या पूछते हो, उसका नाम है मेलामाइन, कॉमन नेम. सर समझा. सर क्ले कौन से कैटेगरी में आता है? क्ले कौन सी कैटेगरी में आता है? Clay you cannot call it as polymer यार, because it is just particles which are sticky. ऐसा. So clay is classified into crystalline or amorphous substances, but not into polymers. Okay. ठीक है? For your better understanding, I want to show you one more video on thermosetting. Yes, sir. Hold on. चलता क्यों नहीं? हो गया नॉनसेंस. ले नहीं हुआ. Thermosets and thermoplastics. Very nice video. ठीक है. सर YouTube से है क्या? हमेशा यूज करता हूँ ये चैप्टर पढ़ाते. It's very easy to understand this way. ठीक है. So it's simple as that. How does this polymer behave to heat? उसके basis पे we classify them on thermoplasts and thermosetting. Thermosets or they can be thermoplastics. Thermoset के example देखो. Sushol, this piece of foam sponge. Thermoplastics के example देखते हैं हम लोग. And this lens holder. Marker. Let's first talk about thermosets. Now, the process in which you are heating a polymer and in which the bonds are becoming stronger and they are getting a permanent shape, that process is called as curing. ठीक है, in thermosets. सर थर्मोसेट से पहले क्या देखा था हमने? कौन है रे? थर्मोसेट से पहले हमने क्या देखा था, मतलब बच्चे अभी थर्मोसेट्स देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम थर्मोप्लास्टिक देख पहले. ओके सॉरी सर. ओके बेटा, सॉरी. नहीं इट्स ओके. ठीक है. Look at this. When you heating it, it cannot be reformed again. वो burn होकर के deform हो जाता है. ठीक है,
This is what I meant when you burn it, it deforms. देखा तुमने बेटा, जैसे उसने उसको burn किया, it just burned out, it blacked out. देखा आप लोग? नहीं सर, एक बार दिखाओ ना वापस। ये देखो, thermoset is burning is giving heat. क्या हो रहा है? It just burns out. वो permanently deform हो जा रहा है and it is burning away. Look at this. Now, this is not an example of a congratulations beta, good identification. Now this is what this is a analogy beta to explain you better कि thermoset और thermoplastic में फर्क क्या है, ठीक है? Thermosetting polymers are very similar to this egg beta. मैंने अंडा तोड़ा और अंडे का ऑमलेट बना दिया, ठीक है? मैंने अंडा तोड़ के अंडे का ऑमलेट बनाया। अब अगर मैं इसको कूल करूं तो ये फिर से अंडा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वो परमानेंटली उसको वो शेप मिल चुका है, परमानेंटली उसको वो मिल चुका है। So this is what is thermosetting polymers. Okay बेटा, did you understand this? हाँ सर, ऑमलेट का ऑब्वियस अंडा नहीं बनेगा। यस सर। ऑमलेट नहीं बनेगा, ये एनालॉजी है बेटा। दिस एनालॉजी यू आर सपोज्ड टू अप्लाई इन पॉलीमर्स। दिस यू आर सपोज्ड टू थिंक अबाउट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को अगर आप हीट करोगे तो वो परमानेंट शेप ले लेते हैं, फिर से रीगेन अपना ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकते। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड रजक, नॉट ओनली अंडा एंड ऑमलेट। ओके, हाँ सर, वेरी गुड बेटा। सर वो अपने आप हीट लेगा या फिर अपन भी अपने आप शेप करेगा? नहीं बच्चे, हीट देना पड़ेगा, दे सकते और अपन अपने हिसाब से उसको मोल्ड्स में डाल के शेप दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ये ओरिजिनल अंडा है, कुक कर दिया तो उसका शेप बदल गया, सिंपल एज दैट। नाउ लेट अस लुक एट थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है? इसको हीट किया तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और इसको रीशेप किया तो आई कैन मेक इट इनटू अ ब्रश और एनीथिंग, व्हाटएवर। दिस इज व्हाट वी मीन बाय यूज। हैव अ लुक एट इट केयरफुली। थर्मोप्लास्टिक्स का ये है, हीट करो, सॉफ्ट होएगा, मेल्ट होएगा, यू कैन रीशेप इट एंड रीयूज इट इनटू अ डिफरेंट फॉर्म ऑलटुगेदर, ओके? Now thermosets का ये प्रॉपर्टी नहीं है। थर्मोप्लास्टिक एग्जांपल इज योर आइस क्यूब, ठीक है? आइस क्यूब को मैंने हीट दिया, उसको हीट किया, वो पिघल गया, बट यही पिघले हुए आइस क्यूब को अगर मैं फिर से ठंडा करूं तो वो अपना आइस क्यूब शेप वापस ले लेगा, और आइस क्यूब शेप अगर मैं उसको देना चाहूं तो वो ले सकता है। Did you understand the analogy between thermoplastic and thermosetting plastics? I mean, this is the best way of. अभी आपके सामने दो चीज है बेटा, एक प्लेट में बटर है और एक प्लेट में पैनकेक है, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ दीज टू इज गोइंग टू बी अ थर्मोप्लास्टिक एंड व्हाट इज गोइंग टू बी अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक ये बटर होएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्यों? बिकॉज बटर को पिघलाया तो शेप चेंज होगा, उसको अगर मैं फिर से कूल करूंगा तो वो ओरिजिनल शेप वापस ले लेगा। बट जो मेरा पैनकेक का बैटर है वो मैंने अगर हीट कर दिया तो वो पैनकेक पे परमानेंटली शेप ले लेगा, वो फिर से क्या बोलते हैं वापस पैनकेक के बैटर में कन्वर्ट नहीं होगा। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, स्टैटिक नहीं बेटा, थर्मोसेटिंग। वही सर, नहीं, अलग चीज है। स्टैटिक और थर्मोसेटिक में फर्क ही नहीं है तुमको? के लिए भी सागर और साहिल में फर्क नहीं है। फैजान बेटा, मेरे को तुम सबकी आवाजें पता है, समझे ना? एक बार ना ये लॉकडाउन खोलने दो बेटा, फिर बताता हूँ। टाइम है सर, नवंबर दिसंबर होएगा लॉकडाउन। पंचायती लाल, लेक्चर पे ध्यान दो, ठीक है? This is did you understand the analogy, my motive behind showing you this video? Yes sir. हाँ सर, एकदम अच्छे से समझा। ठीक है बेटा। सर ठीक है, thermoplastic, thermoset. So Om was correct. सर
See, butter is melting when heating. बटर देखो सर पिघल रहा है। हाँ बेटा पता है। वो जल जाएगा। तो पिघल ही है। पर वो देख पैनकेक जल गया। ऑमलेट जुड़ा के उसमें बस क्या सर? ठीक है। थर्मोसेट में देखो क्या हो रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया था, क्रॉस लिंकिंग और स्ट्रांग होता है, पर इसको और हीट किया तो ये टूट जाता है। Thermoplastics on the other hand, they simply slide and they become soft and they start melting. बाद में वापस हीट निकाल स्लाइड क्यों हो जाते हैं सर? Slide in the sense they just soft होने पे वो they become fluid ना, वैसा वो बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे रीयूज करके कुछ भी बना सकते हैं उनका। सर कुछ भी मतलब अपना पेन का जो बचा उचा है वो सब कुछ भी बना सकते हैं? हाँ बेचा, हाँ यस। आपने ट्राई किया क्या सर? रीयूजेबल नहीं किया मैंने ट्राई। कंपनी करती है सब काम। एग्जैक्टली सर की आपको सामने दिख रहा है गाइस। थैंक यू सर। कैन वी टेक दिस डिस्कशन ऑफलाइन प्लीज? Yes. Good. Now tell me about this plastic bag which you are saying. Is it a thermoset or a thermoplastic? It is a thermoplastic or it is a thermoset? Thermoplastic. थर्मोसेट है सर, थर्मोसेट। Thermoplastic. And this is for rubber. This is your tire. ठीक है? थर्मोसेट। Thermoset है tire. थर्मोसेट। Plastic is your thermoplastic. It can be recycled. And your tire is your thermoset. सेट। सर पॉलीथीन को रिसाइकल कर सकते हैं क्या? Yes बेटा, yes. पॉलीथीन ही प्लास्टिक है बेटा। सर तो उसको ये बैन क्यों कर दिया? मतलब बोलते हैं क्या वो बैन इसलिए कर दिया बिकॉज वेस्ट जो बनता है बेटा, वो इतना लोड में है और हमारे तुम्हारे जैसे उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, जहाँ मिलता है वहाँ फेंक दिया, इसीलिए कुछ नहीं सुना दे रहा। हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हो क्या? यस मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? सर सुनना ही नहीं दे रहा था सर। अच्छा होल्ड ऑन, आई वाज मूविंग द मार्कर, द कर्सर। सो उसको बैन इसलिए किया गया बेटा बिकॉज वो डिकम्पोज नहीं होता है और हमारे तुम्हारे जैसे लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। वी डू नॉट प्रॉपर्ली डिस्पोज इट ऑफ, जिसकी वजह से गौरैया प्लास्टिक खाती है और फिर प्रॉब्लम होती है। ओके सर। हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो उस पे लिखा रहता है प्लास्टिक पे कि अबो 15 माइक्रोन। सर वो क्या रहता है? वो उसका विड्थ रहता है बेटा, उसका डेंसिटी रहता है, जो हम लोग देखेंगे ना HDP और LDPE, वैसा हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, वैसा। ओके सर। उसका विड्थ रहता है। चराने वाला प्लास्टिक आता है देख, और एक होता है कपड़े की दुकान में जाता है तो वो प्लास्टिक, दोनों की विड्थ और स्ट्रेंथ में फर्क होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, एक आर पर दिखता है, एक आर पर नहीं दिखता है। ओके वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका स्ट्रेंथ भी तो होता है ना बेटा कुछ? हाँ सर। हाँ थिकनेस एक मोटा होता है, एक पतला होता है। हाँ एग्जैक्टली। डी-मार्ट वाला। डी-मार्ट वाला, वेरी गुड बेटा। सर प्लास्टिक बैन है। बैन। कपड़ा देते उधर लोग, क्लॉथ बैग। कापड़ी भी इशू सर। बोलो। हेलो हेलो सर, आप दूसरे फोन से ये करो ना। तो उस दिन जैसा हम लोगों ने आपको बताया, हाँ सर, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। उस दिन जैसे किया था सर। I was moving the cursor. Can you for some time? Impatient people. सर उस दिन जैसे किया था वही अच्छा है। सर ये भी सुनाई नहीं दिया आपने जो बोला। Guys, I was moving the cursor. Can you be patient for like 2 minutes? 1 मिनट के लिए भी तुमको पेशेंस नहीं है? मतलब इतने तुम लोग डेडिकेटेड हो कि बाप रे बाप, I don't want to lose my even 1 minute. Useless. सब लोग आपको चिढ़ा रहे सर। I know that. I know that. I know that. I will stop taking lectures in this batch. सर एक ही तो बैच है सर। Exactly. That is what was my point. Okay. चलो. Now look at over here. Addition polymerization. ठीक है. Now we are going to see
कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन और एडिशन पॉलिमराइजेशन। बेटा इस पे प्लीज ध्यान देना, एडिशन पॉलिमराइजेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एडिशन पॉलिमराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, what are the steps involved in addition polymerization, how does addition polymerization occur, why we are calling it as step growth polymerization. So 3 steps रहेगा बेटा, 3 steps रहेगा. When I talk about these 3 steps are going to be chain initiation, chain propagation and chain termination. मेरा पॉलीमर का जो चेन है उसको, उस रिएक्शन को इनिशिएट होना पड़ेगा, स्टार्ट होना पड़ेगा, फिर उस चेन को ग्रो होना पड़ेगा, उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, लेंथ उसका बढ़ना पड़ेगा, और इट इज नॉट an infinite process, so it has to stop, it has to terminate at a point. So chain termination, these 3 steps में हम लोग देखने वाले हैं. Polymerization. हेलो सर. यस बेटा, यस बेटा. सर ये पढ़ाया है ना एडिशन? बेटा मैंने आपको इसका टाइप बताया था, अब इसका इन डेप्थ हम लोग पढ़ने, मैंने बोला था ना कि वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द टाइप्स, वी आर गोइंग टू स्टडी देम ऑल इन डिटेल. सो नाउ एडिशन पॉलिमराइजेशन का प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म वी आर स्टडीइंग. ओके ओके. So the process of forming of polymers from its monomeric units is called as polymerization. Now it is responding on 2 waves: polymerization mechanism and mode of synthesis. Addition polymerization, chain growth polymerization, and the other one is condensation polymerization or growth polymerization. There is also a third one in the new portion, and that is your open ring polymerization. वो इस वीडियो में नहीं है बेटा, I will take it up separately. So don't worry about it, ठीक है? I will take it up. मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो आगे जाके कोई क्वेश्चन मत करना कि ये नहीं बताया, ये नहीं बताया. I'm going to take it up. I'm just clarifying it because ये पुराना वीडियो है, तो इसमें वो नया पार्ट नहीं है. But we will do that part also. सर कौन सा वाला आपने बोला? Open ring polymerization. ओके सर. Okay. Now एडिशन पॉलिमराइजेशन हम लोग देखते हैं. ये देखो, एडिशन पॉलिमराइजेशन में व्हाट्स गोना हैपन ना, मोनोमर रहेगा, ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग, व्हाटएवर, जिसका भी हम लोग को पॉलीमर बनाना है. सो दीज मोनोमर्स दे विल सिंपली कीप एडिंग देमसेल्व्स in a must line. That is your addition polymer which is being formed by this method. ठीक है? Now, what are the steps involved? What happens in this polymerization exactly? So there is a series of reactions in these polymers. अभी free radical formation is your first step. एक free radical बनेगा, ठीक है? There's going to be a compound, alkyl peroxide जैसा कोई compound लेंगे. We will break that compound और उसका free radical बनेंगे. 2 free radical मिलेंगे उसके, ठीक है? अभी free radical मतलब there is a possibility of bond formation because there is a electron over there. मेरा monomer आया, monomer में double bond है, वो double bond टूटेगा, again bond formation बढ़ जाएगा वहां पे. So ये मोनोमर इस फ्री रेडिकल को एक एंड पे अटैच होगा. अब ये जो एक एंड पे अटैच हो गया, मतलब दूसरा एंड पे एक बॉन्ड फ्री है, यहाँ पे वो दिख रहा है, वो डॉट कार्बन के ऊपर, मतलब ये फ्री रेडिकल ही एक्सटेंड होते जा रहा है आगे आगे. दूसरा मोनोमर आएगा, वो भी यहाँ पे अटैच होगा, फिर उसके पास एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ऐसे डॉट दिखाएंगे वहां पे हम लोग, एंड सो ऑन. तो ये चेन बढ़ता जाएगा. ये जो पहला स्टेप है, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये फ्री रेडिकल बना और ये एक मोनोमर अटैच हुआ. दिस इज योर चेन इनिशिएशन. इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ पॉलीमर बनना. अब ये डॉट दिख रहा है, ये फ्री रेडिकल. अब इसके अंदर मोनोमर्स ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा. दैट इज योर चेन ग्रोथ, ठीक है? वो आपका चेन प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है. वैसा देखो, दूसरा मोनोमर आया, उसका डबल बॉन्ड टूटा, उसके बाद बॉन्ड बनाया, वहां पे एक रेडिकल हो गया. दिस आया ऐसा. दिस इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पॉलीमर एंड द चेन, एंड इट कंटिन्यूज.
and this is the chain is growing. That is why it is called as chain growth polymerization. Now, let us look at the mechanism of addition polymerization. Let us, first important concept for addition polymerization is there has to be a free radical to initiate the chain. Now, free radicals are neutral reactive species, okay, with a electron present. Look at this. Tertiary butyl radical. It has one unpaired electron. Because of this one unpaired electron, it can attach other compounds to it. So let us look at the chain initiation step of our free radical mechanism. अभी आपके सामने जो कंपाउंड है, that is your benzoyl peroxide. ठीक है. Now, what are the stages involved over here? So, पहले इनिशिएटर जो है, जो कंपाउंड है, वो UV लाइट में we are going to break it into a free. We are going to make it into a free radical. Free radical पहले से नहीं बना रहेगा, पहले तो नॉर्मल कंपाउंड रहेगा. You will break it and make it into a free radical. Like this. Benzoyl peroxide. It undergoes homolytic fission on exposure to light to form free radical. See that? It उसका जो bond है, it will break homolytically and two free radicals will be formed like it is shown, highlighted over here. ये लिख लेना बेटा please. लिख लिया? Am I connected? Yes, sir. हाँ सर. So we are learning free radical mechanism, जिसका first step is chain initiation step. We have a alkyl peroxide. Here we have a benzoyl peroxide, which is breaking homolytically in the presence of light and giving us two free radicals, like you can see over here. Okay. This free radical breaks down further to give me a phenyl radical and carbon dioxide. This phenyl radical is monomer. In this case, we are taking the example of ethene. Ethene में डबल बॉन्ड है, इसका ये डबल बॉन्ड टूटेगा और जो एक कार्बन का एंड है वो फिनाइल रेडिकल से अटैच हो जाएगा. तो वो जो हो गया मोनोमर ज्वाइन होने से, कार्बन का ये एंड पे देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट विल रिक्वायर पेयरिंग, सो इट विल अटैच अनदर मोनोमर ऑफ ethene. फर्स्ट स्टेप समझ में आया? चेन इनिशिएशन कैसे हो रहा है सर? बताओ एक बार. सर लिखो ना फिर से एक बार. जी ठीक है. अपने पास मोनोमर में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो एंड फ्री हो जाएंगे इसके, इट विल रिक्वायर बॉन्डिंग. अब मेरे पास फ्री रेडिकल है, उसके पास वो इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो ये कार्बन का एक एंड इस फिनाइल रेडिकल से अटैच हो जाएगा. तो दूसरा एंड जो है कार्बन का, इट विल बी लाइक दिस, सी लाइक दिस, यू सी दिस. सर एक मिनट. बोलो बोलो. रिंग के ऊपर वो सर वो कैसे आया रिंग और रेडिकल? बच्चा अभी तो थोड़ी देर पहले में पूरा दो ये था ना, मेरे पास बेंजोइल पेरोक्साइड था, वो टूटा इनटू फ्री रेडिकल दैट फर्दर डिकम्पोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिनाइल फ्री रेडिकल. बताया था ना बच्चे. इतनी सी देर में कैसे पहुंच जाते हैं? हाँ सर आपने दिखाया नहीं था ये. ए चल अबे डूड,
व्हाट इज रॉन्ग विथ यू यार? पूरा चालू है, सबको दिख रहा है स्क्रीन। बेटा मैंने नहीं दिखाया था वो? दिखाया था। सौरभ सर मेरे इसमें नहीं दिखा था सर। ओके ठीक है, अग्री, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तुमको नहीं दिखा होगा। ओके ठीक है, ये चेन इनिशिएशन स्टेप समझ में आया बच्चे अभी? हाँ सर अभी समझा ना बेटा? अदर्स अदर्स? हाँ सर समझा। हेलो? हाँ हाँ। यस। Is your chain propagation step. Okay. Now ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे बना है, इसके साथ और मोनोमर्स ऐड होते जाएंगे, सिंपल एज दैट। इसके साथ मोनोमर ऐड होते जाएंगे और ये चेन बड़ा होता जाएगा। एक और इथीन मॉलिक्यूल अटैक करेगा फ्री रेडिकल और ये भी अटैच होगा इसके साथ। समझ रहे हैं? टर्मिनेट कैसे होगा? आएंगे बेटा, सब्र करो अमन। तुम्हारे सब्र क्यों नहीं है बेटा? ये अपन सेकंड स्टेप पे हैं, टर्मिनेट थर्ड स्टेप में है। विल गो टू इट ना। सॉरी सर। ठीक है गाइस, ये समझा? प्रोपोगेशन इट्स सिंपली इलोंगेशन ऑफ द पॉलीमर। पॉलीमर बन रहा है, इसका क्या बोलते हैं, लेंथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके हेलो? हाँ सर। गाइस you are not अरे पेशेंट ओके, बट व्हेन आई एम आस्किंग यू कि समझा कि नहीं क्वेश्चन तो पूछो ना रे भाई। जो सामने है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछो बच्चे। एवरीबॉडी यू आर अंडरस्टैंडिंग? एवरीवन इन द क्लास? देयर आर सम 140 odd students. यस सर। ओके यस ओके। तो क्या ये चेन रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, ये चेन अपना बड़ा होता जाएगा। ओके, इनिशिएशन हो गया, चेन प्रोपोगेशन हो गया। अब ये चेन इन्फिनिटी तक चलता थोड़ी रहेगा, बॉन्ड बनते थोड़ी रहेंगे। मेरे पास लिमिटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन रहेगा उस सैंपल में, तो इट हैज टू टर्मिनेट, इट कैन नॉट जस्ट बी एन ओपन एंडेड चेन। तो इफ यू रिमेंबर, मेरे स्टार्टिंग में जब मैंने फिनाइल रेडिकल बनाया था बेटा, वो 2 फिनाइल रेडिकल थे, राइट? 2 फ्री रेडिकल्स बने थे, है ना? हाँ सर। राइट? हाँ, तो 2 बने थे सर। जैसे एक फिनाइल रेडिकल ने एक चेन बनाया, वैसे ही वो जो दूसरा फिनाइल रेडिकल था उसने भी एक चेन बनाया रहेगा। ये चेन और ये चेन जब आपस में मिल जाएंगे तब मेरा ये पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि मतलब ये जो फर्स्ट वाला फ्री रेडिकल है वो एक लंबा चेन बनाए, बराबर, और जो एक खाली था फ्री रेडिकल वाकई ज्वाइन हो जाए उसमें लास्ट में? वेरी गुड बेटा, एकदम बहुत ही समझदारी की बात की तुमने। वैसा भी पॉसिबल है, बट जनरली फ्री रेडिकल जो होता है वो फ्री नहीं, मतलब वो आइडल नहीं रह पाता है, तो वो भी सोल्यूशन में एक चेन बना ही लेता है, इसलिए चेन और चेन कंबाइन होते हैं। बट व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली possible, but the problem is when you're putting it in the reaction mixture, it does not stay idle, it will definitely form a chain. ठीक है बच्चा? Okay, sir. Now see this, जैसे ये एक चेन बना है वैसे ही एक दूसरा चेन बना है और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बन गया मेरा पॉलीमर। ये मेरा फाइनल पॉलीमर है, पॉलीथीन वाला polymerized product. Simple as that. इस steps समझ में आए? chain initiation, chain propagation and chain termination. हाँ sir. Okay. I have one more video. For simplifying you and giving you more. I always show it. समझ में नहीं आता है। You will look at this video and it is a more visual video which gives us the clarification or which shows us how exactly polymerization will occur. ठीक है?
it has some details about क्या बोलते हैं uses of polymers वगैरह भी वो भी रहेगा, ठीक है. So let me see. Guys, just observe this. There are 3 examples given over here. Now, polyethylene, PVC, polystyrene, that is made up of polyethylene. This is polystyrene. This is polystyrene. Okay, look at these types. These are PVC types. Okay, these are all examples of. ये देखो, again polythene, ये packing वगैरह में use हो रहा है. Now look at the window panes which are shown. These are PVC window panes. ठीक है. Now let us have a look at this polymerization process of polyethylene जो हमने अभी देखा. Okay. Look at this. Raw material which is the monomer which we are talking about is going to be ethene molecule. Ethene molecule. ठीक है. Now monomer is one part, polymer means many parts, simple. So polyethylene means many ethylene parts, simple. So ये one part से many parts कैसे मिलेंगे? This is an alkyl peroxide. वो जो benzoyl peroxide मैंने लिया था, this is आप कोई भी peroxide उसमें ले सकते हो. Alkyl organic peroxide, simple as that. This organic peroxide is breaking homolytically and forming a free radical. So this is your chain initiation step. ठीक है. This organic peroxide is breaking into free radical और R उसके पास वो point है which is your क्या बोलते हैं जो bond बनाएगा. This free radical, this organic free radical is going to attack ethylene molecule and is going to break the double bond and is going to attach itself. Look at this. ये bond टूटा और यहाँ पे bond बन गया. This is your chain initiation. Guys, everybody is watching this, right? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So this is your chain initiation. Chain initiation हो गया हमारा. अभी इसके दे एक दूसरा रेडिकल बन गया बिकॉज इसके एंड में देखो वहां पे एक बॉन्ड क्या बोलते हैं बना हुआ है, फ्री है, वो ग्लो कर रहा है, उसको बॉन्ड बनाना है तो और इथिलीन मॉलिक्यूल्स आएंगे और उसमें ज्वाइन होते जाएंगे. ये देखो दिस इज चेन प्रोपोगेशन. ये आया, दूसरा इथिलीन मॉलिक्यूल आया, तीसरा आया एंड सो ऑन. दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू. ये इथिलीन ऐड होता जाएगा. दिस इज योर चेन प्रोपोगेशन और चेन बढ़ते चला जाएगा, लंबा होता जाएगा चेन. ठीक है. तो ऐसे चेन्स बन गए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चेन्स बन गए. अब ये चेन कहीं टर्मिनेट होना है, खत्म होना है. तो जैसा वो एक चेन बना है ऐसा ही दूसरा भी एक चेन बना है पेरोक्साइड को लेकर के. तो फिर ऐसे दो चेन्स आकर के आपस में एंड टू एंड अटैच हो जाएंगे. सी लाइक दिस. सर ये अपने आप ही होता है क्या? ऑब्वियसली बेटा. टर्मिनेट हो गया और मेरा को पॉलीमर मिल गया मेरा. सर सारे पैर हो जाएंगे. इसी हाँ बच्चे, हाँ कोई भी फ्री नहीं रहेगा. इट्स रेडिकल ना. नाउ लुक एट पीवीसी. सेम प्रोसेस रहेगा. दिस इज योर मोनोमर फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसमें भी सिमिलर होगा. ठीक है. इसका मोनोमर इज वाइनिल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड. बस डिफरेंस ये है कि एक हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम. हेलो सर. हाँ बेटा. वो स्पीडोमीटर दिखा रहा था 8 बार, वो क्या है? वो प्रेशर वगैरह का कंडीशंस वगैरह वो दिखा रहा है. अच्छा सॉरी, प्रेशर. ओके. ठीक है. नाउ पॉलीस्टाइरीन के लिए क्या रहेगा मोनोमर? ऑब्वियसली स्टाइरीन रहेगा. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? एक हाइड्रोजन की जगह एक बेंजीन रिंग रहेगा, फिनाइल ग्रुप रहेगा. सिंपल. दिस इज योर पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर. ऐसा. Now, सर वो 0.3 नैनोमीटर क्या है? किसका बॉन्ड है? These are क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ बेटा. बॉन्ड किसका? कौन से? दो मोनोमर्स के बीच के का लेंथ. ठीक है. अच्छा. ये देखो. This is your विनाइल एंड पॉलीस्टाइरीन के मोनोमर्स आपके सामने. ठीक है.
Understood, guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. क्या बोलते हैं, अलग अलग पॉलीमर्स, see now how different addition polymers are actually formed. ठीक है, addition polymers कैसे बनते हैं, or their uses also, and their uses also. Now some important addition polymers are low density polythene, high density polythene, Teflon, and polyacrylonitrile. These are examples of your addition polymers. First is low density polythene, or commonly known as polythene. इसका acronym क्या है? LDPE. These are the conditions, beta. High pressure and 350 to 570 Kelvin of pressure in the presence of a catalyst. Now, your either oxygen or a peroxide initiator is used. Okay, this we have seen all. For example, उसी में we have seen this. Now, this equation is showing the polymerization of LDPE. ठीक है, polythene होता है, under very high pressure and high temperature it gets converted to low density polyethylene. ये लिख लो बेटा, easy है और important भी है. क्लियर? सर वो जो आपने पहले दिखाया था, सर वो जिसमें ये बेंजाइल ऐसा कुछ तो नाम था ना उसका, बेंजोइल पेरोक्साइड. हाँ सर, वो बेंजाइल पेरोक्साइड वो जब ऐड हुआ था इथिन को, तो सर उस टाइम पे क्या बना था? मेरा एक और पॉलीमर बना था, ये बना था, क्या बोलते हैं, रेडिकल बना था, फ्री रेडिकल बना था. और सर फिर जब ऐसे बहुत सारे ऐड हुए तो एग्जैक्टली, आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन. तो जब मैं पॉलीमर बनाऊंगा ना बेटा, उसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीथीन ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो पॉलीथीन उस, अगर मैं चेन को कंसीडर करूं, दैट चेन इज वेरी ह्यूज, इट्स अ वेरी बिग चेन. ठीक है, and when you look at the overall properties, at the overall chemical properties of your chain, polyethylene is dominant in that structure. तो जो दो free radicals attach हुए हैं ना, they do not have much to play a role in the chemical properties of that polymer. इसीलिए उसके chemical compound के नाम में that part is not considered. I hope you understand. ठीक है बेटा? Okay, sir. हाँ सर. ये लिख लिया सबने? ठीक है. It's a highly branched structure. So the resulting plastic is soft. They are branched. They are. सर ब्रांच रहेगा तो उल्टा स्ट्रांग रहने चाहिए ना, ज्यादा बॉन्ड है. नहीं, बॉन्डेड क्यों बेटा? ब्रांच ना, लिंक थोड़ी है. अच्छा, सिर्फ ब्रांच है. यस. हाँ, वो तो अट्रैक्शन की वजह से. हाँ बराबर. ठीक है. Inert, it is tough but flexible and a poor conductor of electricity. Look at the uses of LDPE: electrical wiring, squeeze water toys, and flexible pipes. Okay guys, ठीक है.
Let us continue Yes, sir. with high density polythene and with the chapter further in tomorrow's lecture.